Start the recording. A warm welcome and good afternoon, because we are doing this on a very sunny afternoon, discussing a couple of ideas and also sharing that how we can move forward. Continuing on the series and not repeating many points which we have discussed in all the sessions, because we always go back to the sessions and we try to see what more could have been done. We try to keep on improving and also keeping a top notch discipline with respect to bringing the best. The idea remains the same, that in a bilingual manner, how we can write better, how we can be sure and confident about what we are putting up, and at the same time, we are having a pleasant attitude towards it also, which is very, very important. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन्स. हमारे सामने हिंदी वर्जन है. वी कैन रीड द इंग्लिश और हिंदी वन, व्हाटएवर वी फील लाइक. सो मिस्टर एक्स, बिलियनियर बिजनेसमैन, कॉन्ग्लोमरेट हेड हैं. ही इज एंगेज इन इंश्योरेंस, एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, तो इट्स अ बिग डील. डिस्पाइट being globally known as a philanthropist, he turned down a shareholder request seeking disclosure of the conglomerate actions on the issues related to climate change as well as diversity inclusion. Because of the increased attention to climate and diversity issues, many leading firms have committed themselves to incorporate new considerations in their business strategies. So, कुछ industry observers, they wonder that if Mr. X is out of touch with the industry at large and have warned him that failing address to climate change or these things इसके systemic risk हैं. But Mr. X maintained his vote against the disclosure proposal, while at the same time acknowledged the importance of both climate change and diverse and inclusive workforce. Mr. X believes that such ethical issues take secondary importance to maximizing shareholder profit. अगर आप सरफेस पे देखोगे तो सच्चाई है, इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं कॉर्पोरेट्स. वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव सीन थ्रू आवर करंट अफेयर्स एंड आल्सो आवर जनरल स्टडीज डिस्कशंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि कैसे जो मेजर कोर एरियाज होते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द इंक्रीज इन कंट्रोल ओवर पावर, इट इज रिफ्लेक्टेड. तो अब केस स्टडी डिलेमा तो नहीं है, केस स्टडी तो डायरेक्ट है, लेकिन एक आइडिया देती है आपको. यू कैन लर्न हाउ टू राइट. इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो एथिकल पर्सपेक्टिव से आपको ये 3 चीजें बतानी है. In your opinion, what matters more for a business organization, socio-environmental concerns or shareholder profit? अच्छा क्वेश्चन है. And how can the above two mentioned issues can be reconciled? So there are very clear areas. Bring ethical quotes, personalities, and even phrases while addressing such issues. चलिए आगे. अब सबसे पहले मैं होता तो कोट देता कि कैसे कोई भी बिजनेस, या एक कोड देता, मैं किसी भी फिलैंथ्रोपिस्ट का एक कोड देता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिजनेस, बिजनेस विद द सेंस ऑफ ethics, business with humanity, कुछ भी लिखता. The world becomes more equal when we are sharing the solution for global problem, कुछ भी लिखता. वो ethical term से ज्यादा अच्छा होता. तो challenges imposed by climate change तो सिर्फ नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें बोल रहा है ये, तो climate change और diversity दोनों बातें बोल रहा था. तो आपने शुरू में जब इसको corporate ethics से बोला, तो अब ये फैल गया. पहले ही पैराग्राफ में आपने ESG नॉर्म्स, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, CSR स्टैंडर्ड, SDG गोल्स, अब कुछ बचा ही नहीं लिखने को. ये आपने बस एक बार मेमोरी का बटन दबाया, जो दिमाग में आया सब एक साथ लिख दो भाई. एंटर मारा और गूगल सर्च किया दिमाग का, और आपने सारे पॉइंट डाल दिए. अब चैलेंजेस इम्पोज बाय क्लाइमेट चेंज नहीं है. हो सकता है कि ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस से ही क्लाइमेट खराब हुआ है, ये भी तो लिख सकते थे कि ये बिजनेस प्रैक्टिसेस ही हमें वातावरण को खराब करने पर मजबूर कर देती है और हमें सोचना पड़ता है. समथिंग लाइक ऑफ दैट सॉर्ट वुड हैव बीन डन. स्टेक होल्डर वाला पार्ट तो लाइक एवरीवेयर इट इज अ नॉर्म. बहुत जल्दी ये भी घसीटा पसीटा हो जाएगा, और जो नए एग्जामिनेशन में नए स्टूडेंट्स जो लिखेंगे वो कुछ और लेके आना चाहेंगे. स्टेक होल्डर्स में भी मतलब कि वी हैव टू थिंक, और वेदर वी हैव टू बी कॉशियस एंड ऑप्टिमिस्ट एट द सेम टाइम कि हम क्या लिखें. तो ये पहली बात है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज एंड डाइवर्सिटी इंक्लूजन. तो उसमें आपने लिखा इंटर जनरेशनल इंटर जनरेशनल इक्विटी. बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है. प्रमोट स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ये भी बहुत अच्छा टर्म है.
पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, लेकिन ये सारे के सारे फ्रेजेस के साथ एथिक्स भी आना चाहिए। तार्किकता जो है आपकी वो सोच के साथ निकल के आनी चाहिए। यूटिलिटेरियन एथिक्स एंड नॉट सोली ड्रिवन ऑन प्रॉफिट मोटिव्स, आई अप्रिशिएट दैट। जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल ठीक बात है। इंक्लूसिव वर्कफोर्स, तो यानी कि एक इंप्रूवमेंट दिख रही है आंसर में पहले के मुकाबले, हम ये कह सकते हैं। In your opinion, what matters more for a business organization? Social environment concerns or stakeholder profit? As it is known, private sector is driven by chalo profit motive. Both the factors matters to them. तो एक नैरेटिव की जगह आप कुछ एकदम चकाचौंध कोई बढ़िया स्टेटमेंट लेके आइए, कोई बढ़िया कोट लेके आइए। कहाँ जाएगा वो सब? कुछ तो लिखिए। चाहे आपने कर्म मेधा सुना, चाहे आपने विजडम सुना, चाहे आपने कोई और बात, चाहे आप इंडिया के ऐसे फिलोसोफर्स हैं, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं, टाटा हैं, कुछ भी है, कुछ तो लाइए। सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में आपने बोला एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, तो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं ये, लेकिन ये एथिकल टर्म्स नहीं है। इसके अंदर आप अगर लेके आते कि कैसे ट्रस्टीशिप मॉडल वाली जो बात है, या कैसे या हमें कितना चाहिए, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। द गोल इज नॉट टू इंडस्ट्रियलाइज द वर्ल्ड, द गोल इज टू मेक श्योर दैट द इंडस्ट्रीज रन इन अ सस्टेनेबल मैनर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो सारी चीजें आ गई हैं। बस सारी चीजें आ चुकी हैं, बस उसका टर्म थोड़ा सा वैसे पहले के मुकाबले कहा जाए तो 10% इंप्रूवमेंट तो आज भी है आंसर में, अगर हम पहले की सीरीज से लेके चलेंगे, लेकिन स्टिल एज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड सो वी कैन से सो। तो पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स, डिविडेंड रीति, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के टर्म्स जो अच्छे हैं, स्टैंडर्ड हैं, दे आर अमेजिंग, दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड, वो फ्रेश ब्रीथ की तरह है, लेकिन कुछ एथिकल टर्म्स भी आने चाहिए और ज्यादा। चाहे फिर वो आप एटीट्यूड की बात करो, चाहे फिर वो आप ट्रांसपेरेंसी की बात करो, चाहे फिर वो आप इंटीग्रिटी की बात करो, चाहे फिर वो अबाउट हाउ मच इज इनफ। जरूरत क्या है? बीएमडब्ल्यू, जरूरत क्या है 5 करोड़ की घड़ी की? तो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए? इंडस्ट्रीज किसके लिए? जो सोशियो जो एथिकल कैपिटलिज्म, आपने एथिकल जो कैपिटलिस्ट मॉडल की बात की, उसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हल्का सा, तो दिस वुड हैव बीन मच बेटर। रिकनसाइल्ड की बात है, एक्शन स्पीक्स लाउड, मिस्टर एक्स शुड वॉक द टॉक, पीरियडिकली अपडेट द इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एग्जांपल दो इंडिया में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं, जो कि चाहे फिर वो आईटीसी हो, चाहे फिर वो टीसीएस हो, वो लेके आइए आपको। अबाइडिंग बाय लॉज, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बल्कि आपको सोशल मोरालिटी भी अपहेल्ड करनी चाहिए। क्या आप डाइवर्सिटी में, क्या आप दिव्यांग जनों को क्या आप जॉब दे रहे हैं? दिव्यांग जनों के बहुत सारे ऐसे हैं, क्या आपने उनके लिए कोई अलग कैफे? अब मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, वो अपना बहुत बड़ा मॉल चलाती है, बहुत बड़ा मार्ट चलाती है, अरे वहीं पर वो नीचे दिव्यांग जनों के द्वारा हैंडीक्राफ्ट बिकवा सकती है, लोग खरीदेंगे। जो सब्जी खरीदने आएगा, जो ग्रोसरी खरीदने आएगा, उनके पास 2 मिनट खड़ा होगा और लेगा वो। तो आपको और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा जो क्विक एलिमेंट्स लेके आने की जरूरत है, क्योंकि हमें इस आंसर से फायदा हो सकता है, लेकिन क्या वाकई पूरा फायदा हो पाएगा? क्या आप जैसा कोई और भी सब सोच पाएंगे? और अगर आप जैसा सोच पाएंगे और लोग भी, और थोड़ा अच्छा भी सोच पाएंगे, तो फिर देन वी विल बी इन ए प्रॉब्लम। तो बाकी सारे एलिमेंट्स ठीक हैं, बाकी स्टैंडर्ड नॉलेज बन चुकी है, अमेजिंग वर्ड्स हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। स्टेक होल्डर्स बता दिया आपने भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरर्स, कॉर्पोरेट मेंबर, ईडी, अच्छा ईडी को भी आप ले आए, बिलियनियर कंपनी, शेयर होल्डर, मैन्युफैक्चरर। The theme of the case study is ethical responsibility towards environment, seeking national as well as international interest। चलो नीचे वाली लाइन मैं मानता हूँ प्रॉपर नहीं है, लेकिन अच्छी कोशिश की। बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिफ्लेक्टेड की बिहेवियरल चेंज चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस, इकोलॉजिकल जस्टिस चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, अच्छे की वर्ड्स हैं, द वर्ड्स आर रियली अप्रिशिएटेड, फ्रेजेस आ रहे हैं जो हम पहले आंसर में बात कर रहे थे। प्रमोट इन्वायरमेंटल एथिक्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए सस्टेनेबल हो, एग्जाम्पल यहाँ पर भी नहीं है, सब थियोरिटिकल है। मोरल ऑब्लिगेशन, बिजनेस एम्फसाइज क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर, इन माय ओपिनियन बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। चलिए आगे चलिए। लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम इट कैन एग्जिट ट्रस्ट बिल्डिंग, अच्छा समझाया है, लेकिन थोड़ा समझा है पहले वाले आंसर में भी, इसमें भी, दोनों दे आर आंसर टुवर्ड्स बेटरमेंट, आंसर टुवर्ड्स राइजिंग द हाई लेवल। उसके बाद आपने रिकनसाइल करने की बात की, तो सीएसआईआर वाला एलिमेंट पहला आ गया, फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात की, कार पूलिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों की, आई एम नॉट श्योर। परसुएडिंग एथिकल, बड़ी पिक्चर लेके आइए, बड़े आइडियाज को लेके आइए। लास्ट में आपने भी सर्कुलर इकोनॉमी, ईएसजी मॉडल सब कुछ लिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी और आ सकती है।
अप्लाइड एथिक्स के द्वारा हमारे जो कि कार्य को सही और गलत को पहचानता है। मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण को निरंतर नुकसान पहुंचाता रहता है, जिसकी कीमत उसे बहुत अधिक है। हमें पर्यावरण नैतिकता को समझना और उसे महत्व को लाने की जरूरत है। तो इन्होंने भी एक ही एलिमेंट को उठाया, दोनों एलिमेंट का है, एनवायरमेंट की बात भी थी और डाइवर्सिटी की बात भी थी। वो दोनों तो नहीं आए, एक ही आया। एक आया तो नंबर भी एक के हिसाब से मिलेगा, 50% मार्क्स ऑलरेडी आउट हो जाएंगे। पर्यावरण, पृथ्वी, अन्य व्यक्ति, शेयर धारक, सरकार, पर्यावरण संस्थान, एनजीओ, जैसे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी रणनीति और विविधता एवं समावेश को शामिल करने के महत्व पर चर्चा। परफेक्ट ड्यूटी का पालन करें, नियमों का पालन, व्यवसायिक संबंध उत्पन्न अपशिष्ट को मुक्त रूप से ना छोड़ें। ठीक है, आपने आइडिया तो बता रहे हैं आप। एसडीजी के नियमों का पालन कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं आप, बायोडिग्रेडेबल कचरा बैग की बात कर रहे हैं, पर्यावरण शिक्षण 1986 की बात कर रहे हैं। कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की। और मैं तो चाहता हूँ थोड़ा और ठहराव हो, जिसमें आप, जैसे आप पर्यावरण संरक्षण अभियान 1986 की बात कर रहे हो, तो आप लिखिए कि उसको कैसे प्रमोट भी किया जाए। एथिक्स तो वही है, आप क्या करते हैं, क्या हो सकता है और आप क्या करते हैं, वही एथिक्स है। वरना इसमें और जीएस के आंसर में फर्क नहीं रहेगा ना। सामाजिक पर्यावरण चिंताएं बहुत व्यापक हैं, उन्हें हम व्यापारिक से सीमित नहीं रख सकते, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक लाभ से पर्यावरण प्रयत्नों को नहीं बदल, ठीक है। सतत विकास, चलिए। अंतर पीढ़ीगत समानता, जो उन्होंने इंटरजेनरेशन लिखा, तो अच्छी बात है। तो यानी मोल्ड हो रहा है, लेकिन मोल्ड आने के बाद भी एक जगह और फोकस चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा और लेके आना चाहिए। और इन सब के लिए सबका साथ सबका विकास, लेकिन पर्यावरण के साथ जरूरी है। कैसे सुलझाएं? योजना को प्रमाण पत्र मिलने के बाद कार्य आरंभ हो, सिर्फ बस इतना बता के ठहर गए। बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं। ऐसे सुलझाएं कि स्टेक होल्डर्स को साथ लें, जो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग होती है जो कंपनी की, उसमें कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को एक्सप्लेन करें। हमारा विजन नंबर 1 बनना है, लेकिन हमारा विजन नंबर 1 बनना एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा करके आप लेके आइए, उसमें आप एग्जाम्पल दीजिए कैसे सतत विकास की प्रक्रिया भारत में रही है। इवन इन एंशियंट टाइम्स हमारे यहाँ पर श्रेणी और श्रेष्ठी भी थे। इवन इन मॉडर्न टाइम्स हमने जो शुरू में पीएसयूज की बात की, तो उनका भी यही था, वो पर्यावरण को उन्होंने कभी खास नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक तरीके का जुडिशियस अप्रोच लेके आने की आवश्यकता है। चलिए आगे। तो कॉर्पोरेट एथिक्स वाला आ गया, ये क्रूशियल फॉर हार्मोनियस एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल कंटिन्यू प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी, इन्होंने बताया। चलिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, अब उसका भी एथिकल एलिमेंट ले आते थोड़ा सा। अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा ठहराव है। पहले वाले आंसर, दूसरे वाले सब आंसर एक ही स्टेज के ऊपर फाइट कर रहे हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन नीचे नहीं। सोलर सेल बता दिया इन्होंने, ओजी बता दिया, रेटिंग रेशनलाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स बता दिया, डाइवर्सिटी बता दिया। अब इन्होंने डाइवर्सिटी को जो है, डाइवर्सिटी से इन्होंने उसको भी अच्छा समझाया। इन्होंने डाइवर्सिटी का मतलब इन्होंने कम्युनिटी से ले लिया, और इंक्लूसिव वर्कफोर्स के साथ इन्होंने बताया इसके अंदर। लेकिन इंक्लूसिव वर्कफोर्स में भी एलबीजीटी, या फिर जैसा हमने कहा दिव्यांग जन जो डिसेबल्ड है, उनको कोई सपोर्ट मिले विदाउट गोइंग आफ्टर जस्ट प्रोडक्टिव, आई मीन टू से विदाउट ओनली जस्ट मास प्रोडक्शन। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी की बात की, प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स की बात की, फाइनेंशियल सपोर्ट, चलिए। लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी, चलिए। आप चलिए आगे, चलिए। यानी आपको और गहराई उस मुद्दे को लेके आना होगा, आपको और फील करना होगा, तब आप समझेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म में बिजनेस कैसे। सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात की, कम्युनिटेरियन अप्रोच वर्ड अच्छा है, बट in practically we see both instances where on one hand shareholders give leverage and vice versa, way to reconcile। चलिए आगे। कंपनीज एक्ट 1913 जनरल मोरल कंसर्न फॉर बिजनेस, टाटा, उषा, देखो इन्होंने एग्जांपल दिया। सनराइज सेक्टर की बात की, अच्छा लिखा है, ठहराव है आंसर के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ ईएसजी, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, और थोड़ा सा छोटा वो हो तो काम बनेगा। लेकिन आई थिंक गुड अप्रोच बाय ऑल ऑफ यू, गुड एफर्ट, बेस्ट नहीं है। चलिए आगे। शेयर होल्डर्स बता दिया, बिलियनियर बता दिया, गवर्नमेंट विद पीपल, स्टेट्स, क्लाइमेट चेंज, उसके बाद ओनर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट, एक्शन स्पीच लाउडर देन वर्ड्स। ये इन्होंने भी यही लिखा है, पहले भी एक ने यही लिखा था। आई ओके, दैट्स अमेजिंग। टेकिंग राइट हैंड, टॉकिंग राइट हैंड, ट्रेट ऑफ एथिकल लीडरशिप, मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज, प्रॉफिट कुड बी मैनेज इन स्मार्ट वे। चलिए चलिए आगे चलिए। क्लाइमेट चेंज स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एक्नॉलेजिंग दैट, चलो वो हमने ऊपर भी लिखा है इसी तरीके से। इंक्लूसिविटी डिसीजन मेकिंग, for first just future, okay, reducing socioeconomic inequalities, diverse viewpoints, experience, business organizations reputation, increase based on trusteeship values। I think ठीक है। शेयर होल्डर्स प्रॉफिट,
पर कोई एग्जाम्पल, कोई कोड, कोई कुछ तो मतलब लेके आना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी आप औरों से अलग हो पाएंगे। भी ये सारे आंसर एक ही दिशा में चल रहे हैं, कोई ऐसा आंसर नहीं जो लिटरेचर से इंस्पायर्ड हो, फोक विजडम से इंस्पायर्ड हो, पंचतंत्र से इंस्पायर्ड हो, या वॉरेन बुफे से इंस्पायर्ड हो, या भारत के ही पहले लाल लाजपत राय ने भी पंजाब नेशनल बैंक बनाया था, या हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है। कोई ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं से कुछ भी लाना नहीं चाहते, एक नैरो माइंडेडनेस के साथ सिर्फ आप चलते चलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। Profit would shrink in long term. For example, oil companies business model, सऊदी अरेबिया का आपने आरामा को एग्जांपल दिया, फियर ऑफ बैंक्रप्सी। टाटा इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी इंक्लूसिवली टाटा पावर सोलर, अच्छा है, अच्छी कोशिश है, ब्रॉडर है। फिर आपने बात की कि लेइंग डाउन फैक्ट बेस्ड पीपीटी टू परसुएड मिस्टर एक्स। ओके, इन द लॉन्ग रन द ब्रांड वैल्यू वुड गेट हर्ट along with the business model would get hurt। अच्छा, फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनको समझ में आना चाहिए। कार्बन बॉन्ड की बात की, कार्बन यानी कि एथिकल एस्पेक्ट आना चाहिए आपके अंदर, वो आपके अंदर वो जो है एक तरीके की एक वो जो कॉन्साइंस है, किसी ने भी पूरे के पूरे किसी के आंसर में कॉन्साइंस की बात नहीं हुई, किसी के आंसर में भी यू नो एथिकल डेलिमा वर्ड यूज नहीं हुआ कि ये डेलिमा है अपने आप में कि प्रॉफिट की पर जाएं या किधर जाएं। सबने जो है हार्ड कोर जनरल स्टडीज और एकदम मतलब एमबीए वाला अप्रोच से आंसर लिखने की ज्यादा कोशिश की, और ट्रैक पर है, लेकिन थोड़ी सी शायद 5-10% गुंजाइश और भी है। आइए देखते हैं, द केस ऑफ मिस्टर एक्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशनेट कैपिटलिज्म, जिसको हमने एथिकल कैपिटलिज्म का ट्रस्टीशिप मॉडल हमने ही बोला, लेकिन हम बाद में कहीं कहीं बोला, इन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, नीड फॉर डाइवर्सिटी। स्टेक होल्डर हमने भी बताया, आपने भी वही बताया, चलिए आगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डाइवर्सिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज की रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जांपल आईपीसीसी ने इतना बोला है, इतना होना चाहिए, 1.1 से बढ़ गया, प्लस माइनस 0.13 हैज हैपेंड। रीअफर्म द ट्रस्टीशिप मॉडल वेयर कॉर्पोरेट्स नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। ऊपर से फिर वही रिपीट हो गया, एथिकल कैपिटलिज्म। इट विल ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू क्लाइमेट चेंज, शॉर्टेज ऑफ, लेकिन इन्होंने फिर भी उस चीज पर फोकस करने की बात की कि रिसोर्सेज क्यों बचाएं, रिसोर्सेज बचने चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है हम पहले के अगर मुकाबले बात करें। सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस मेंटेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, देयर में बी पॉवर्टी, ये ठीक है, वर्ल्ड बैंक में इन्होंने बताया। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी में इन्होंने इम्पैथी लेके आए, जस्टिस लेके आए, एलबीजीटी क्यू की बात की, वुमेन develops capability of individuals, trust by society in the business organization, ensure that organization is not centered about egoism but ethical and altruism, ये वर्ड भी अच्छा है। इनोवेशन की बात की, डेलिमा में इन्होंने दो डिवीजन कर दिए, सस्टेनेबिलिटी, जस्टिस। उसके बाद जो है फिर से वो इंश्योर जस्टिस, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, फुलफिल सेल्फ इंटरेस्ट, फुलफिल पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स। शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी होगा, ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनी की हो पाएगी आगे चल के। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ गुड लाइन, एंड फोकस ऑन इगोइज्म ऑफ शेयर होल्डर्स, दूसरी तरफ फोकस ऑन अल्चुरिज्म, और दूसरी तरफ मे लीड टू ग्रीड एंड इनइक्वालिटी, देयर नीड टू बी बैलेंस, नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द व्यू ऑफ एथिकल बिहेवियर। सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स में मैटर मोर, बट देयर शुड बी मध्यम मार्ग बिटवीन देम। तो कोशिश तो की इन्होंने, थोड़ा सा हल्का सा और स्ट्रेच कर पाए, जो कि हम नहीं कर पाए। इन्होंने रिकंसिलिएशन ऑफ इश्यूज की जो बात की, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी की बात बोली, डिस्क्लोज अप्रोच हमने भी बोला, और उसके बाद अकाउंटेबल टू एनवायरमेंट डाइवर्सिटी, ये बात हमने बोली है। सेपरेट एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, बजटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने रिक्रूटमेंट की बात भी की। तो उन्होंने बेसिक उसी चीज को बोला, हम थोड़ा सा अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं, थोड़ा डिसिप्लिन, हम्बलनेस, और खुद को हम ज्यादा और झोंकेंगे पॉजिटिव अप्रोच से, तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू रीच अप टू दिस लेवल। सो दिव्या, व्हाट डू यू से अबाउट योर फर्स्ट केस स्टडी? सर, जो सब चीजों को लेके चलना है, सिर्फ ये नहीं है कि एक पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, तो इथिक्स भी होनी चाहिए उसमें कि नॉर्मल बिहेवियर में कैसे दिखती है। और टाइम पीरियड के अंदर लिखना है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ जी चल। सर। ओके मानसी। So
कि एथिकल एंगल पे एलिमेंट पे ज्यादा सोचना है, मतलब अगर जीएस वाले पॉइंट्स माइंड में आ रहे हो उसके बाद फिर उसको एथिक्स से रिलेट करके सोचना है तो डिमांड कन्वर्ट फुल। करना। हम्म। आप क्या बोलेंगे कौशिक जी? अच्छी तो कोशिश की, ठीक। वन लेयर डीप हो जाना है एंड सेकंड इज हाँ हाईलाइट करना है जो एथिकल हाँ, कीवर्ड है ताकि वो बिल्कुल। दिखे। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना है, बाकी सब चल ही रहा है, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करना है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हल्का सा करते ही वो हो जाएगा। So in the part 2 of the session, we are going to take up the next case studies. Keep watching and also learning and try to understand the process and the managerial aspect behind it, which definitely requires a deep attention and a repeat visit again and again and a lot more. Thank you very much.